یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. اتوار 21 دسمبر کے سیربین سننے والوں کو جاوید چودھری کا سلام. اسسٹنٹ ہائی کمشنر کے گھر پر حملے کی کوشش پر چٹاگانگ میں انڈین ویزا سینٹر غیر معینہ مدت کے لیے بند. امریکہ نے وینزویلا کے ساحل سے دوسرا آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں سزا کے بعد احتجاج کی کال. پٹیالہ کے باہر اگر آپ دیکھیے کہ کارکنوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے تو وہ بڑی شرمناک ہے اس بڑی پارٹی کے لیے. خدا کے وجود پر دہلی میں مباحثہ. جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی آمنے سامنے. سمپل بات یہ ہے کہ میں اگر یہ یقین کر لوں کہ ایک اومنی پٹن اس کی مصلحت ہے, یہ جو بچے مر رہے ہیں یہ مصلحت ہے اس کی, مجھے نہیں چاہیے تھی مصلحت. اس کی مصلحت نہیں, یہی تو سمجھنا ہے. مطلب ایکسپیرینس. اچھا, آپ نے ابھی میری بات پوری سنی نہیں. میں نے کہا آپ کا پورا آرگیومنٹ 2 فالس اسمپشنز پر ہے. ایک فالس اسمپشن میں نے بتا دیا, دوسرا فالس اسمپشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول کے ہونے کا کوئی گڈ ریزن نہیں ہے. جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کے قریب قصبے میں فائرنگ سے 9 افراد ہلاک. انڈیا کی ریاست آسام میں ٹرین کی ٹکر سے 7 ہاتھیوں کی ہلاکت. سنیے وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات. ایک میں ہی تو قید نہیں, تم بھی تو میرے قیدی ہو. میں اندر قید ہوں اور تم میرا پہرا دیتے ہوئے باہر قید. جانیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ان قرضوں کے بارے میں جس کا سود نوابوں کے ورثہ آج بھی وصول کر رہے ہیں. انڈیا کی ریاست اودھ کے نوابوں نے وقتاً فوقتاً جو قرض ایسٹ انڈیا کمپنی کو لگ بھگ 2 صدیاں پہلے دیے تھے اس کا فائدہ ان کے ورثہ آج تک اٹھا رہے ہیں. مگر کتنا فائدہ, یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی. اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی, مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. انڈیا نے اسسٹنٹ ہائی کمشنر کے گھر پر حملے کی کوشش کے بعد بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں اپنا ویزا سینٹر غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے. سرکاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ چٹاگانگ میں انڈیا کے اسسٹنٹ ہائی کمیشن میں سیکیورٹی کے ایک حالیہ واقعے کے تناظر میں لیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں چٹاگانگ میں تمام ہندوستانی ویزا سے متعلق سرگرمیاں 21 دسمبر سے اگلے نوٹس تک معطل رہیں گی. ویزا درخواست مراکز کو دوبارہ کھولنے کے بارے میں مزید اعلان صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کیا جائے گا. بنگلہ دیش میں طلباء کی تنظیم انقلاب مانچا کے ترجمان عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد مشتعل گروہ نے جمعرات کی شب چٹاگانگ میں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے دھرنا دیا تھا. سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز میں متعدد افراد کو اسسٹنٹ ہائی کمشنر کی رہائش گاہ پر پتھراؤ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے. اس کے بعد پولیس نے انہیں لاٹھی چارج کے ذریعے منتشر کر دیا تھا. پولیس نے موقع سے 12 افراد کو حراست میں بھی لے لیا ہے. اس سے قبل 17 دسمبر کو بھی ایک طلباء تنظیم نے ڈھاکہ میں انڈین ہائی کمیشن کے محاصرے کا اعلان کیا تھا. سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ڈھاکہ میں بھی انڈین ویزا سیکشن بند کر دیا گیا تھا, لیکن اسے 18 دسمبر کو دوبارہ کھول دیا گیا تھا. امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق امریکہ نے ایک آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا ہے جو حال ہی میں وینزویلا سے روانہ ہوا تھا. رواں یہ دوسرا موقع ہے جب امریکہ نے ملک کے ساحل سے تیل بردار جہاز کو پکڑا ہے. یہ اقدام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منگل کے روز اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ وینزویلا آنے اور جانے والے تیل کے ٹینکرز کی ناکہ بندی کا حکم دے رہے ہیں. وینزویلا نے امریکی اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے چوری اور اغوا قرار دیا ہے. وینزویلا پہلے بھی امریکہ پر الزام لگاتا رہا ہے کہ وہ اس کے وسائل چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وینزویلا کی حکومت کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے میں اقوام متحدہ کی سلامتی
सलामती काउंसिल और दीगर बैन अवी तंजीमों में इस मामले पर शिकायत दर्ज कराएंगे। हालिया हफ्तों में अमरीका बहराए कैरिबियन में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है और इसने वेनेजुएला की मनशियात की स्मगलिंग की मुबैना कश्तियों पर मौलिक हमले किए हैं, जिसमें तकरीबन 100 अफराद हलाक हो गए हैं। ताहम अमरीका ने कोई सबूत फराहम नहीं किया है कि ये जहाज मनशियात लेकर जा रहे थे और इस मामले पर अमरीकी इंतजामिया फौजी हमलों पर कांग्रेस की तरफ से बढ़ती हुई जांच पड़ताल की जद में है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशा खाना 2 केस में सज़ा के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत की है कि वो एहतजाज की तैयारी करें। इमरान खान की जानिब से सनीचर को अडियाला जेल में अपने वकला से गुफ्तगू का मतन उनके एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया है। इमरान खान ने तोशा खाना 2 केस में 17 साल कैद की सज़ा मिलने पर रद्द अमल देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि यहाँ सिर्फ लिखे लिखाए फैसले पढ़कर सुनाए जाते हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 3 बरसों के बेबुनियाद फैसलों और सज़ाओं की तरह तोशा खाना 2 का फैसला भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। इमरान खान ने दावा किया कि उन्हें और उनकी अहलिया को मुसलसल कैद तन्हाई में रखकर ज़हनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि हमारी किताबों, टीवी और मुलाकात सब पर पाबंदी है। जेल में हर कैदी टीवी देख सकता है, लेकिन मुझ पर और बुशरा बीबी पर टीवी देखने तक की भी पाबंदी लगा दी गई है। मेरे ख़ानदान की जानब से जो किताबें भेजी जाती हैं वो जेल हुकाम की तरफ से रोक ली जाती हैं। इमरान खान ने यह भी कहा है कि मेरी बहनों और दीगर ख़वातीन के साथ अडियाला जेल के बाहर जो बदसलूकी और जुल्म हो रहा है उस पर मुझे शदीद दुख और अफसोस है। ये जो सलूक बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन, महारंग बलोच और दीगर ख़वातीन के साथ किया जा रहा है वो इस्लामी रिवायात और अखलाकियात के बरक्स है। उनका ये भी कहना था कि फ़ौज मेरी है और पाकिस्तानी कौम की है। जब मैं किसी पर तनकीद करता हूँ तो वो एक शख्स पर तनकीद है, जैसे माजी के डिक्टेटर्स पर भी होती आई है। इमरान खान का कहना था कि कानून की बालादस्ती और आइन की बहाली की जद्दोजहद के लिए वकला का फ्रंट फुट पर आना नागुज़ीर है। उनका कहना था कि मुझे सलमान सफदर और उनकी टीम पर एतमाद है और मैंने उन्हें हिदायत की है कि बोगस फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करें। मैं सुहेल आफरीदी को पैगाम देता हूं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें। पूरी कौम को अपने हकूक़ के लिए उठना होगा। जिद्दोजहद इबादत है और मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए, शहादत के लिए भी तैयार हूँ। यह कहना था पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का। सवाल यह है कि क्या इमरान खान की इस कॉल पर अमल होगा? उनके कारकुन उनकी रिहाई की जद्दोजहद के लिए सड़कों पर निकलेंगे? इस सवाल का जवाब हमने पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तजिज़ियाकार अम्मार मसूद से जानने की कोशिश की है। जी अम्मार, जद्दोजहद होगी, रैलियां निकलेंगी, धरना दिया जाएगा? रद्द अमल अब नहीं आता। असल में कारकुनों का एक फटीग लेवल होता है। तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश रही है और इमरान खान साहब की भी ज़ाहिर है उसमें ये ख्वाहिश शामिल रही है कि हर रोज़ एहतजाज हो, हर रोज़ कारकुन सर पर कफन बांध कर बाहर निकले, हर रोज़ लाशें गिरें, हर रोज़ आंसू गैस हो, हर रोज़ जलाओ घराए की सियासत हो। इमरान खान ने कुछ अरसा बड़ी कामयाबी से इस तरह की सियासत का दौर चलाया भी। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने भी इस तरह की 2-3 काविशें की। लेकिन कारकुनों को आहिस्ता-आहिस्ता लगता है बात समझ आ रही है, या दोनों बातें हो सकती हैं। या तो कारकुनों को बात समझ आ गई है, उन्हें पता चला कि ये जो एहतजाज की कॉलें हैं, ये बेसिकली रॉन्ग नंबर है, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। या हो सकता है ज़हनी तौर पर वो मुत्तफ़िक हों इमरान खान से और उनकी कॉल को गौर से सुनते हों, उनके नज़रियात पर अमल करना चाहते हों। सही। लेकिन एक कारकुनों की फटीग लेवल होता है। एक मुद्दत के बाद उन्हें अपने काम करने होते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी भी चलनी होती है और वो सिर्फ़ धरनों और एहतजाजों में अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। तो ये अभी आप देख लीजिए ना कि जैसे इतनी बड़ी पार्टी है, वो कहते हैं कि हमने पूरा पाकिस्तान इलेक्शन में जीता। अडयाला के बाहर अगर आप देखिए कि कारकुनों की तादाद कितनी होती है, तो वो बड़ी शर्मनाक है उस बड़ी पार्टी के लिए। पहली दफ़ा जब रीमा खान बैठी थी, 250 लोग थे। उसके बाद उन्होंने हर ग्रुप में कहा, एमएनएज़, एमपीएस की ड्यूटी लगाई, सियासी रहनुमाओं की बेइज्जती की, उनको डाँट-डपट की। उसका नतीजा ये हुआ कि अगली दफ़ा 450 लोग थे। 450 लोगों की बुनियाद पर इनकलाब नहीं आ सकता। 450 लोगों की बुनियाद पर ये सब कुछ तब्दील नहीं हो सकता। तो वो कारकुनों को भी समझ आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल में एहतजाज की कॉल इस तसलसल से दी जा रही है
کہ اب لوگ اس پہ بور ہو گئے ہیں اور اس میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ یہ تو روز کا معمول بن گیا نا۔ صحیح عمار مسعود، آپ کا بے حد شکریہ۔ انڈیا کے دارالحکومت نئی دلی میں ہفتے کے روز خدا کے وجود پر ایک اہم مباحثہ منعقد ہوا، جس میں معروف نغمہ نگار و مصنف جاوید اختر اور مذہبی اسکالر مفتی شمائل ندوی نے اپنے موقف پیش کیے۔ مباحثے کی میزبانی صافی سوراب دیودی نے کی۔ جاوید اختر نے غزہ میں بچوں کی ہلاکت کا حوالہ دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اگر خدا قادر مطلق ہے تو وہ اس ظلم کو کیوں نہیں روکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا ظلم، ناانصافی اور تشدد سے بھری ہوئی ہے، اور اگر خدا یہ سب دیکھ کر بھی مداخلت نہیں کرتا تو اس کی پرستش کا کیا جواز ہے۔ اس کے جواب میں مفتی شمائل ندوی نے کہا کہ اکثریت انسانیت خدا کے وجود پر یقین رکھتی ہے اور برائی انسانی اختیار اور آزمائش کا حصہ ہے۔ انہوں نے جاوید اختر کے دیگر سوالات جیسے مذہبی کتابوں میں ڈائنوسارز کے ذکر کا بھی جواب دیا۔ سمپل بات یہ ہے کہ میں اگر یہ یقین کر رہا ہوں کہ ایک اومنی پیٹنٹ اس کی مصلحت ہے، یہ جو بچے مر رہے ہیں یہ مصلحت ہے اس کی، مجھے نہیں چاہیے اس مصلحت، اس کی مصلحت نہیں، یہی تو سمجھنا ہے۔ مطلب ایکسپیڈینس۔ اچھا، آپ نے ابھی میری بات پوری سنی نہیں۔ میں نے کہا آپ کا پورا آرگیومنٹ دو فالس اسمپشنز پر ہے۔ ایک فالس اسمپشن میں نے بتا دیا، دوسرا فالس اسمپشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول کے ہونے کا کوئی گڈ ریزن نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس بعض ریزنز موجود ہیں، ہمارے پاس بعض وجوہات موجود ہیں۔ اگر اس دنیا میں ایول نہ ہو تو آپ گڈ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر ظلم نہ ہو آپ انصاف کو سمجھیں گے کیسے؟ اگر تاریکی نہ ہو تو آپ لائٹ کو سمجھیں گے کیسے؟ بہت اچھے، ابھی اور سن لیں، ابھی اور باقی ہے۔ یہ تو بات بہت پسند آئی صاحب مجھے، کہ جب تک ریپ نہ ہو تب تک عورتوں کی عزت کا خیال آپ نے میرا جواب پورا سنا ہی نہیں۔ جب تک کہ بچوں کا قتل نہ کیا جائے تب تک آپ کو بچوں کی معصومیت کی عزت ہے۔ آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا آپ نے نکتہ نکالا؟ آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں۔ آپ سن لیں، میری بات سن لیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی۔ دوسری چیز، اس دنیا میں ہم آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور ہر انسان کا الگ الگ انداز میں ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس دنیا میں اگر ایول موجود ہے تو وہ ایول ذریعہ ہے ہمارے اندر ہیومن نوبل کوالٹیز کو ڈیولپ کرنے کا اور الگ الگ فیلڈ میں پروگریس کرنے کا۔ اور اگر ہمارے اندر اور اس دنیا میں ایول نہیں ہوتا تو بتائیے ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا؟ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو MCQs دوں اور اس میں صرف رائٹ آنسر لکھ کر دے دوں اور کہوں تمہارا ٹیسٹ ہو گیا، یہ میننگ لیس ہے۔ اس دنیا میں اگر ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے۔ مباحثے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ کچھ صارفین نے جاوید اختر کے دلائل کو کمزور قرار دیا، جبکہ بعض نے انہیں منطق اور بے خوف سوچ کی آواز کہا۔ مفتی شمائل ندوی نے اس مکالمے کو ایک مثبت سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ مختلف خیالات رکھنے والوں کو لڑائی کی بجائے مکالمے کا راستہ اپنانا چاہیے۔ جنوبی افریقہ کی پولیس کا کہنا ہے کہ جوہانسبرگ کے قریب ایک قصبے کے ہوٹل میں فائرنگ کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ تقریباً 12 نامعلوم مسلح افراد 2 کاروں میں ہوٹل پہنچے اور بار میں موجود افراد پر فائرنگ کر دی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جس ہوٹل میں فائرنگ کی گئی وہ لائسنس یافتہ تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد قریبی علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ Yeah, no, the challenge in crime in Bakersdal mostly is contact crimes. Those are assaults, attempted murders, and rapes. Those are some of the challenging crimes and hijackings that mostly happen at N12. Those and from here and there it's property-related crimes, but it's not so much to that extent, but اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم کی سن 2023 اور 24 کی رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ میں قتل کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں پر 1 لاکھ افراد میں سے 45 افراد کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ انڈیا میں حکام کا کہنا ہے کہ ریاست آسام کے ضلع ہوجائی میں ٹرین کی زد میں آ کر 7 ہاتھیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہاتھیوں کا ریوڑ ریلوے لائن عبور کر رہا تھا کہ اس دوران آنے والی ٹرین نے انہیں ٹکر مار دی۔ ٹرین کی ٹکر سے 1 بچھڑے سمیت 7 جنگلی ایشیائی ہاتھی ہلاک ہو گئے۔ شمال مشرقی سرحدی ریلوے کا کہنا ہے کہ ٹرین ڈرائیور نے درجنوں ہاتھیوں کو دیکھا اور ہنگامی بریکوں کا استعمال کیا، لیکن کچھ جانور پھر بھی مارے گئے۔
تصادم کے بعد 5 बोगियां पटड़ी से उतर गईं, लेकिन दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में सवार किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। हादसे की वजह से मुख्तलिफ ट्रेनें मनसूख कर दी गईं, जबकि बाज़ का रुख मोड़ दिया गया है। मारे गए हाथियों का बाद में जानवरों के डॉक्टरों ने मुआयना किया, जिसके बाद उन्हें दफना दिया गया है। रियासत आसाम इंडिया में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी में से एक है। रियासत में तकरीबन 6000 हाथी मौजूद हैं। शुमाल मशरकी सरहदी रेलवे का कहना है कि मुकामी रेलवे की पटरियों को अक्सर हाथियों के रेवड़ अबूर करते हैं, लेकिन सनीचर का वाकया एक ऐसे मुकाम पर पेश आया जो हाथियों की राहदारी नहीं थी। सामीन, आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर पेश है वुसअतुल्लाह खान का कॉलम बात से बात, जिसका उन्वान है क्या दुआ को भी अर्श तक पहुंचने के लिए अस्करी इजाज़त दरकार है। आज कुछ कहने को ख़ास नहीं, बस कुछ नज़में सुन लीजिए। ये नज़में मज़ाहमत के माहिर फ़लस्तीनी शोरा की हैं, मगर इन नज़मों का अहाता हर वो ख़ित्ता और कौम है जो एक ही तरह की इब्तला में मुब्तला है। महमूद दरवेश लिखते हैं, तुमने मेरे जद्दी बागात चुरा लिए, वो ज़मीन चुरा ली जिस पे मैं और मेरे बच्चे हल चलाते थे। तुमने मेरी नस्लों के लिए सिवाय पत्थरों के कुछ ना छोड़ा। सुना है तुम ये पत्थर भी चुराना चाहते हो। मैं ना तो नफ़रत करता हूँ और ना ही चोरी, मगर भूख में तुम्हारी हड्डियाँ ज़रूर चबा सकता हूँ। डरो मेरी भूख से और फिर मेरे गुस्से से। समीउल कासिम लिखते हैं, तुम भले मेरी ज़मीन का आखिरी टुकड़ा तक चुरा लो, मेरी जवानी को जेल में सड़ा दो, मेरे अजदाद की सब निशानियाँ बशमूल फर्नीचर, कालीन और बर्तन हत्या लो, मेरी नज़में और किताबें जला दो और मुझे कुत्तों के आगे डाल दो। मेरे गांव के सर पे दहशत की चादर कस दो, पर रोशनी के कातिल मैं तुमसे कभी सौदेबाजी नहीं करूँगा। तौफीक ज़ियाद लिखते हैं, उनकी आमद से पहले मेरी खिड़की की चौखट पे फूल खिलते थे। सीढ़ी दर सीढ़ी खेतों से अंगूरों की बेलें लपटी पड़ती थीं। मेरा घर सूरज की शुआओं में नहाते नहाते झूम जाता था और मुझे ख्वाब देखने से ही फुर्सत न थी। पर ये खून आलू टैंकों पे सवार उनके घुस आने से पहले का किस्सा है। तौफीक ज़ियाद की एक और नज़म सुनिए। हम यहीं मौजूद हैं, तुम्हारे सीने पे धरे पत्थर बन के, तुम्हारे हलक में मौजूद कड़वाहट की शक्ल में, तुम्हें कसक देने वाले कांच के नोकीले टुकड़े की तरह, तुम्हारी आँखों में मुसलसल चुभने वाले कांटों जैसे हम यहीं मौजूद हैं एक बगुले की तरह। हम यहीं मौजूद हैं अपने गीत बखेरने के लिए, गुसीली गलियों में चलने के लिए, बावकार अंदाज में जेलें भरने के लिए, जैतून और इंजीर के सायों की निगहबानी के लिए, अपने बच्चों के सीनों को बगावत के खमीर से गूंदने के लिए हम यहीं मौजूद हैं। समा सबाबी की एक नज़म सुनिए। क्या दुआ को भी अर्श तक पहुंचने के लिए फ़ौज की इजाज़त दरकार है? क्या लगन को भी समंदर पार करने के लिए खुसूसी परमिट चाहिए? क्या नफ़रत को भी आँखों से बाहर आने के लिए शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है? क्या नाराए बगावत की आमाजगाह दिल पे भी बुलडोज़र चल सकता है? एक मैं ही तो कैद नहीं, तुम भी तो मेरे कैदी हो। मैं अंदर कैद हूँ और तुम मेरा पहरा देते हुए बाहर कैद। सामीन, बर्रे सगीर में बरतानवी नौ आबादियाती निज़ाम की बुनियाद रखने वाली इंग्लिस्तान की ईस्ट इंडिया कंपनी एक दौर में कई इंडियन नवाबों की भारी मकरूज़ थी। तारीख के दिलचस्प और कम मारूफ बाब के मुताबिक इन नवाबों के वुरसा आज भी इस कर्ज पर
सूद वसूल कर रहे हैं। ये मामला उस दौर से जुड़ा है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सियासी असर व रसूख बढ़ाने और फौजी अखराजात पूरे करने के लिए मुकामी हुक्मरानों से कर्ज लिया था। हैरान कुन तौर पर ये माली मुआहदे आज भी कानूनी तौर पर बरकरार हैं और बरतानवी हुकूमत या उसके इदारे बाकायदगी से अदायगियाँ करते हैं। तफसील आज के BBC रीड्स में, जिसे तहरीर किया है साफ़ी अमन लखनऊ ने, जबकि पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। इंडिया की रियासत अवध के नवाबों ने वक्तन फ़वक्तन जो कर्ज ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 2 सदियां पहले दिए थे, उसका फ़ायदा उनके वरसा आज तक उठा रहे हैं। मगर कितना फ़ायदा? ये सुनकर आपको हैरत होगी कि एक उम्र रसीदा वारिस फयाज अली खान को हर महीने मिलते हैं 9 रुपए और 70 पैसे। मगर रुकिए, इससे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि इन चंद रुपयों की वसूली के लिए वरसा दूर दूर से लखनऊ जाते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक से। इस मामूली सी रकम में ऐसी क्या कशिश है कि कई गुना ज़्यादा खर्च आने के बावजूद लोग इसे छोड़ने पर आमादा नहीं। लखनऊ से सहाफ़ी अमन की तहरीर पर मबनी BBC रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहने 90 बरस के फयाज अली खान के कुल 130 रुपये बनते थे, जो उन्होंने अपने लरसते हाथों से वसूल किए। वो रियासत अवध के शाही ख़ानदान के तकरीबन 1200 वरसा में से एक हैं। सूद कह लें या मुनाफा, वजीफ़ा कहें या पेंशन, सरकारी तौर पर इसे वसीका कहते हैं और फयाज अली का वसीका 9 रुपये 70 पैसे माहाना है, यानी जो रकम उन्हें मिली वो 13 महीने का हिसाब है। वो कहते हैं हमें ये वसीका हमारे दादा और परदादा के ज़माने से मिलता आ रहा है। ये इतना कम है कि मैं इसे लेने के लिए साल में सिर्फ एक बार आता हूँ। बुढ़ापे के सबब उनके बेटे शिको आज़ाद उन्हें वसीके की वसूली के लिए ड्राइव करके लाते हैं। शकू कहते हैं अफसोस की बात यह है कि हुसैनाबाद ट्रस्ट से 9 रुपये 70 पैसे लेने के लिए मुझे अपनी गाड़ी से 500 रुपये का पेट्रोल खर्च करना पड़ता है। हमने बार बार वसीके में तौसी की दरख्वास्त की, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। वसीके का मतलब है विरासत की तहरीरी दस्तावेज, जिसकी रूह से अवध के नवाबों के वरसा और लवाहिकीन को ये रकम अदा की जाती है। हालांकि ना नवाब रहे और ना नवाबियाँ और ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी। रियासत अवध की नीम खुद मुख्तार हैसियत तो 1856 में अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दी थी। फिर 1857 की जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी 1874 में बंद हो गई और 1947 में तो अंग्रेज़ भी इंडिया छोड़ गए। मगर लगभग 170 साल पहले शुरू की गई वसीके की ये रिवायत अब तक कायम है और सिर्फ अवध ही नहीं बल्कि केरला, राजस्थान और मुल्क के दीगर हिस्सों में साबका शाही रियासतों के वरसा भी वसीका पाते हैं। दरहकीकत अवध के नवाब सन 1803 के बाद हिंदुस्तान पर अमली तौर पर हुकूमत करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वक्तन फवक्तन इस शर्त के साथ रकम जमा करते या उन्हें कर्ज देते थे कि उस रकम पर हासिल होने वाला सूद उनके अहले खाना और उनसे वाबस्ता अफराद को पेंशन की सूरत में अदा किया जाएगा। तारीखदां डॉक्टर रोशन तकी बताते हैं कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला की बीवी बहू बेगम ने तकरीबन 4 करोड़ रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी शर्त पर दिए थे। रियासत उत्तर प्रदेश के वसीका या विल ऑफिसर SP तिवारी के मुताबिक आज़ादी के वक्त बहू बेगम के रिजर्व बैंक ऑफ कलकत्ता में तकरीबन 30 लाख रुपए जमा थे। ये रकम पहले रिजर्व बैंक ऑफ कानपुर में मुंतकिल की गई और अब तकरीबन 26 लाख रुपए लखनऊ के सिंडिकेट बैंक में हैं और इसी के सूद से वसीका दिया जा रहा है कि नवाब वजीर गाजीउद्दीन हैदर और उनके बेटे नवाब नासिरुद्दीन हैदर ने कंपनी को तकरीबन 4 करोड़ रुपए बतौर दायमी कर्ज दिए थे। इसका मतलब ये था कि असल रकम कभी वापस नहीं की जाएगी, लेकिन सूद उनके वरसा और उनसे वाबस्ता अफराद को नस्ल दर नस्ल मिलता रहेगा। दफ्तर वसीका यानी विल ऑफिस में मौजूद वसीका दस्तावेजात के मुताबिक नासिरुद्दीन हैदर के जाननशीन शाह मोहम्मद अली शाह ने भी 12 लाख रुपए बरतानवी खजाने में जमा करवाए थे। वसीके की तकसीम के लिए पिक्चर गैलरी लखनऊ में 2 दफातर कायम हैं, एक हुसैनाबाद ट्रस्ट के लिए और दूसरा उत्तर प्रदेश हुकूमत के विल ऑफिस के लिए।
सरकारी दफ्तर तो वसीके की रकम अब बराह रास्त ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स में भेजता है, मगर हुसैनाबाद ट्रस्ट अब भी नकद अदायगी करता है। दोनों दफातर मिलकर तकरीबन 5,60,000 रुपए सालाना के वज़ाइफ तकसीम करते हैं। कई लोगों को दोनों दफ्तरों से वसीका मिलता है, मगर इतना कि दोनों को जमा करें तो 10 रुपए भी नहीं बनते। शाहिद अली खान वकील हैं और अपने दादा नवाब मोहम्मद अली शाह के वजीर भी रह चुके हैं। वो कहते हैं, मुझे 4 रुपए 80 पैसे की सहमाही वसीयत मिलती है और दूसरी माहाना वसीयत 3 रुपए 21 पैसे होती है। इतनी छोटी रकम की कदर या वैल्यू के बारे में शाहिद अली खान का कहना था कि इस वसीयत को पैसों में नहीं मापा जा सकता। ये हमारी पहचान है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। यहाँ सिर्फ चंद लोगों को वसीका मिलता है। वो तन्हा इस सोच के मालिक नहीं हैं और बहुत से लोग भी इसे नवाबों की यादगार और अपने लिए एजाज समझते हैं। शाहिद इस रकम को तबर्रुक समझते हैं। वो कहते हैं, मैं साल में एक बार मुहर्रम से 15-20 दिन पहले वसीका लेने आता हूँ ताकि मैं उसे मुहर्रम के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। अगर मैं किसी और चीज़ पर एक पैसा भी खर्च करूँगा तो कसूरवार हूँगा। शकु आज़ाद कहते हैं, वसीके के पैसे से हमारे पान डब्बे के अखराजात पूरे नहीं हो सकते, ना ही इससे हमारे घरेलू अखराजात पूरे होंगे और ना ही इससे हमारे बच्चों के लिए जेब खर्च पूरा होगा। लेकिन हमें फ़ख्र है कि हमारे आबा अजदाद ने यहाँ हुकूमत की। अगर हमें सिर्फ एक पैसा भी मिले तो हम 1000 रुपए खर्च करके वसीका लेने आएंगे। कई लोग बैरून मुल्क से भी वसीका लेने आते हैं। शकु कहते हैं, मेरा कज़न ऑस्ट्रेलिया से आया और 2 साल के वसीके वसूल किए। कई लोग अमेरिका और इंग्लैंड से भी आते हैं, मगर हर वसीका पाने वाले की माली हालत अच्छी नहीं है। नवाब मोहम्मद अली शाह की विरासत के दावेदार 70 साला एजाज आगा कहते हैं, हमारे पास कई वसीके थे, लेकिन परेशानी में हमने कुछ रिश्तेदारों को बेच दिए। अब हमें हर 3 माह बाद सिर्फ 19 रुपए 80 पैसे का वसीका मिलता है, जिसे हम नजराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर तकी वसीके में कमी की कई वजूहात बयान करते हैं। उनका कहना है कि अगर किसी नवाब को 500 रुपए का वसीका मिलता था और उसके 5 बेटे हैं तो नवाब की वफात के बाद वसीका 5 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और हर एक को 100-100 रुपए मिलेंगे। यही वजह है कि वसीके की रकम में नस्ल दर नस्ल कमी आती गई। 6ठी या 7वीं पुश्त तक आते आते किसी के हिस्से में वसीके के 5 रुपए आएंगे तो किसी के हिस्से में 10 रुपए। दूसरी वजह यह है कि पहले वसीका चांदी के सिक्कों में मिलता था जो 1.25 तोले का होता था। जब वसीका चांदी के सिक्कों के बजाय रुपयों में मिलने लगा तो इसकी कीमत में नुमाया कमी वाक़ हुई। फयाज अली खान ने बताया कि उन्हें नवाबों के ज़माने के हिसाब से 4% सूद पर वसीका मिल रहा है, हालांकि बैंकों में सूद की शरह में काफ़ी इजाफा हुआ है। वसीके में कमी के मुतालिक अब आवाज़ें उठने लगी हैं। शाहिद अली खान का कहना है कि वसीके की रकम बढ़ाने के लिए लड़ाई जारी है। वो कहते हैं, मैं ज़ाती तौर पर इस मामले पर हाई कोर्ट जा रहा हूँ। हम अपने दलाइल पेश करेंगे कि वसीके को अब चांदी के सिक्कों में क्यों नहीं दिया जा रहा, और अगर ये चांदी में नहीं दिया जा सकता तो कम से कम रकम चांदी की मौजूदा कीमत के बराबर दी जाए। पुराने दिनों को याद करते हुए फयाज अली खान कहते हैं, मेरे वालिद बताते थे कि वसीके की तकसीम का मंजर मेले का सा होता था। हर किस्म की दुकानें सजी होती थीं, बाजार लगता था, खाने पीने की अशिया दस्तयाब थीं और पिक्चर गैलरी में सैकड़ों मुखय्यर हजरात जमा होते थे। अब वो माहौल ख़त्म हो गया है। मसूद अब्दुल्ला, जिनके अहले खाना वसीका वसूल करते रहे हैं, बताते हैं, पहले जब लोग वसीका लेने के लिए आते थे तो अलग ही मंजर होता था, मेले की तरह महसूस होता था। वहाँ तरह तरह के शरबत फरोख्त होते थे। गर्मियों में फालसे और तरबूज का शरबत मिलता था और सर्दियों में कश्मीरी चाय। लोग इक्के, तांगे और टमटम से आते थे। पर्दादार खवातीन के लिए रिक्शों, तांगों और घोड़ा गाड़ियों पर पर्दे बंधे होते थे। बाज़ नाकदीन इन वसीकों को जागीरदाराना दौर की बाक़ियात समझते हैं और आज के दौर में उनकी मुताबिकत पर सवाल उठाते हैं। लेकिन हामियों का कहना है कि ये पेंशन सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि एक तारीखी वादा और इज्जत और वक़ार की अलामत है जिसे आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस के बाद 191 रन से शिकस्त दे दी है।
इंडिया ने इस फाइनल मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और पाकिस्तान के लिए ये फैसला उस सूरत में बेहतर साबित हुआ कि उसने पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को जीतने के लिए 348 रन का बड़ा हदफ दे दिया। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से ओपनर समीर मिन्हास ने इंतहाई शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और 17 चौके और 2 छक्कों की मदद से 113 गेंदों पर 172 रन की इनिंग्स खेली। समीर मिन्हास ने अपनी सेंचुरी महज 71 गेंदों पर बनाई। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी रहे हैं।